مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ چینی کی برآمد اور سبسڈی دینے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے بطور وزیر تجارت خود کیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں 10 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی 28 ستمبر 2018 کی سمری اس شرط کے ساتھ منظور کی کہ کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی۔ پریس کانفرنس میں خطاب میں مرتضی وہاب نے کہا کہ انکوائری رپورٹ کے مطابق 28 ستمبر کی سمری کی منظوری کے بعد 3 دسمبر کو ترمیم شدہ سمری منظور کی گئی، جس میں 10 لاکھ ٹن چینی کی مقدار بڑھا کر 11 لاکھ ٹن کر دی گئی اور 2 ارب روپے کی سبسڈی کی سفارش کی گئی۔ اس ترمیم شدہ سمری کو وزیر اعظم عمران خان نے بطور وزیر تجارت منظور کیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ چینی کی برآمد اس شرط کے ساتھ کی جا رہی تھی کہ ملک میں قیمتیں مستحکم نہ رہیں تو برآمد روک دی جائے گی، لیکن نہ روکی گئی، اور یہ ساری باتیں وہ یا حکومت سندھ نہیں کہہ رہے، یہ سب کچھ ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ میں لکھا ہے۔ سندھ کی 99% شوگر مل زرداری خاندان اور ان کے فرنٹ مین کی ملکیت ہیں۔ معاملے خصوصی شہباز گل کا پیپلز پارٹی رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا سیاسی نورہ کشتی کرنے والوں کو قوم کے پائی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان بولے، پیپلز پارٹی آصف زرداری کی شوگر ملز کا حساب دے۔ پیپلز پارٹی کے وزراء بتائیں کہ سندھ میں پچھلے 12 سالوں میں کتنی شوگر ملز پر زبردستی قبضہ کیا گیا، یہ بھی بتایا جائے کہ اومنی گروپ کی سندھ میں کتنی شوگر ملز ہیں۔ بولے سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں اضافہ کیا تو مخالفت کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں اومنی گروپ کو چینی پر سب سے زیادہ سبسڈی دینے کا الزام مسترد کر دیا۔ چینی برآمد کرنے کی اجازت دینے پر وزیر اعظم سے انکوائری کا مطالبہ۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کمیشن میں پیش ہونے کا کوئی نوٹس ملا، نہ ہی کوئی سوال نامہ۔ انکوائری کمیشن نے اپنے ہی ٹرمز آف ریفرنس کی خلاف ورزی کی۔ ناصر حسین شاہ بولے، اومنی گروپ کو صرف 15% سبسڈی دی گئی، 84% سے زیادہ سبسڈی دیگر شوگر ملوں کو دی گئی۔ کراچی طیارہ حادثہ، وفاقی وزیر شہری ہوا بازی غلام سرور خان کا ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ 22 جون کو پارلیمنٹ اور عوام کے سامنے پیش کرنے کا اعلان۔ انکوائری پر اظہار اطمینان، کہا اہم سوال یہ ہے کہ جہاز 3 بار رن وے سے ٹچ کرنے کے بعد دوبارہ اڑایا گیا۔ جہاز کے دونوں باکس مل چکے ہیں، جہاز کس کے کہنے پر نیچے آیا اور پھر کس کے کہنے پر اڑایا گیا معلوم ہو جائے گا۔ کراچی میں طیارہ حادثے کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت۔ حادثے کے 7 دن بعد طیارے کا کاکپٹ وائس ریکارڈر مل گیا۔ ایئر بس ماہرین کا مسلسل تیسرے روز حادثے کے مقام کا دورہ، جدید تکنیکی آلات کا استعمال اور فورنزک تحقیقات۔ حادثے میں جاں بحق 97 افراد میں سے 51 کی شناخت ہو گئی۔ اب تک 49 میتیں ورثاء کے حوالے کی جا چکی ہیں۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے کئی اضلاع میں ٹڈیوں کے وار جاری۔ مظفر گڑھ، وہاڑی، رحیم یار خان، مٹیاری، گھوٹکی، سانگھڑ، نوشکی، خزدار میں کھیت کھلیان ٹڈیوں سے بھر گئے۔ کسانوں کی کہیں ڈھول بجا کر تو کہیں شور مچا کر فصلیں بچانے کی کوشش۔ جھنڈ کے جھنڈ آم، کپاس، گنے کی فصلیں چٹ کرنے لگے۔ انتظامیہ کا فصلوں پر سپرے کا دعویٰ، کسان اپنی مددات کے تحت بھی سپرے میں مصروف۔ ملکی زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے ٹڈی دل کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست فوری سماعت کے لیے منظور کر لی۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ پاکستان میں مئی کے 28 دن میں کورونا کے 42,935 مریضوں کا اضافہ ہوا، 457 مریض انتقال کر گئے۔ یکم مئی تک ملک میں کورونا وائرس کے 18,092 کیسز رپورٹ کیے گئے تھے۔ 15 مئی تک کل کیسز کی تعداد 37,218 تھی۔ صرف 13 روز میں ملک بھر میں کورونا کے 24,009 مریضوں کا اضافہ ہوا۔ 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کورونا وائرس کا شکار مزید 36 افراد انتقال کر گئے۔ مرنے والوں کی تعداد 1260 ہو گئی۔ مزید 2076 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق، مریضوں کی تعداد 61,227 ہو گئی۔ کراچی کے اسپتالوں میں کورونا کے وارڈز بھر گئے، صورتحال تشویشناک۔ وزیر اعلیٰ کو دی گئی بریفنگ کے مطابق شہر کے 10 نجی اور سرکاری اسپتالوں میں کورونا کے صرف 9 مریضوں کی گنجائش رہ گئی۔ صوبے میں کورونا کے شکار 235 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، 42 مریضوں کو لائف سپورٹ دی جا رہی ہے۔
वज़ीर आला सिंध की 200 वेंटिलेटर्स और 500 मॉनिटर्स का बंदोबस्त करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद की तातीलात के बाद SOPs के तहत सरकारी दफातर, बैंक्स, पेट्रोल पंप्स, फिटनेस एंड ट्रेनिंग जिम्स और दुकानें खुल गईं। कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर में बैंकों में कारोबारी लेन देन, बैंकों के बाहर यूटिलिटी बिल्स जमा करवाने वालों का रश रहा। पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन, यौम तकबीर। 22 साल पहले आज ही दिन भारत की एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के जिला चागी में 5 कामयाब एटमी धमाके किए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि उस वक्त नवाज शरीफ ने खतरात, धमकियों और लालच की परवाह न करते हुए कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया और फैसला कुन अंदाज में पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। मरियम नवाज का भी वालिद को खिराज तहसीन, कहा सलाम नवाज शरीफ। जो अपने बयानिए से वफा न कर सके वो अवाम से क्या वफा करेंगे। मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाली एक नस्ल की मेहनत और काविश को हर चीज की तरह अपने खानदान से न जोड़ें। यौम तकबीर पर नून लीग की रहनुमाओं के पैगामात पर वजीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द अमल। पंजाब के वजीर इत्तलात फैयाज चौहान बोले, नून लीग की जानिब से एटमी धमाकों का क्रेडिट बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाने के मज़दाक है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि अदालत उज़्मा से सजा याफ्ता चोरों को झूठ बोलकर कौमी हीरोज नहीं बनाया जा सकता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि मौजूदा हुकूमत के सरबराह कंफ्यूज्ड हैं। वज़ीर आज़म ने कोरोना की सूरत हाल पर कौम को इकट्ठा नहीं किया। यौम तकबीर की तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि आज के दिन मुस्लिम लीग की हुकूमत ने मुल्क को नया इस्तेहकाम बख्शा। मुल्क की दिफा पर किसी सूरत समझौता नहीं किया गया। तकरीब से शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफीक का भी खिताब। नैब का जमानत पर रिहा मुल्जिमान के खिलाफ अदालतों में अपीलें भी दायर करने का फैसला। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात की जल्द समाअत के लिए दरखास्तें दायर करने का भी फैसला किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल से कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, सलामती काउंसिल की जानिब से मौसर इक़दामात के फुकदान की कीमत मासूम आवाम को अपने खून से चुकानी पड़ती है। 10वें कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जो मसला आप असेंबली के फ्लोर पर हल नहीं कर पाते यहाँ ले आते हैं। अगर ये दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो आप पर मिसाली जुर्माना आयद होगा। इस केस में सिर्फ ये देखना है कि मुशीर खजाना बगैर मुशावरत से तैनात हुआ। अदालत का वफाकी हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का शुगर इंक्वायरी कमीशन को खिराज तहसीन। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोखर कहते हैं कि गुज़श्ता साल 160 से 180 रुपए फी मन गन्ना बेचा और शुगर मिल्स मालिकान ने अरबों रुपए कमाए। शुगर मिल्स मालिकान को हर जगह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। कारोबार का मामला आए तो जरदारी, जहांगीर तरीन समेत सब एक हैं। काश्तकार के नाम पर टेक्सटाइल और शुगर मिल्स मालिकान सब्सिडी लेते रहे हैं। चीनी की कीमत 1 रुपया बढ़ाने से 50 अरब रुपए का फर्क पड़ता है। काश्तकारों का जो पैसा खाया गया वो वापस किया जाए। शदीद गर्मी के बाद मुल्क के बाज़ हिस्सों में अब्रे करम के साए। हाफिजाबाद और गिरदनवाह में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मुल्क भर में आज से 6 रोज तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कई शहरों में आंधी का भी इम्कान। NDMA ने मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। सिंध के बेशतर इलाकों में गर्मी बरकरार। नवाबशाह में दर्जा हरारत 51, मोहिंजोदड़ो और दादू में 50, सक्खर और डीजी खान में 48, हैदराबाद, सिब्बी और तुर्बत में 46, जम्मू 41, श्रीनगर में 26 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PIA की परवाज से मजीद 149 पाकिस्तानी दुबई से फैसलाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक स्क्रीनिंग के बाद मुसाफिर करंटीना मरकज और होटल मुंतकिल। लाहौर के रिहायशियों को घरों में करंटीना की इजाजत।
वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आलमी वर्चुअल इजलास में शरीक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इजलास की मेज़बानी कर रहे हैं। इजलास में कोरोना वबा और बाद के दौर में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब ने 31 मई से मक्का मुकर्रमा में कर्फ्यू में नरमी का ऐलान कर दिया। मस्जिदुल हराम में मुकर्ररा ज़वाबित के मुताबिक जमे और फ़र्ज नमाज़ें जमात से अदा की जाएंगी। कर्फ्यू में नरमी का दूसरा मरहला 21 जून से शुरू होगा। दुबई में सरकारी दफातर 31 मई से खोलने का ऐलान। अमरीका की दारुल हुकूमत वाशिंगटन में लॉकडाउन में नरमी। रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबार कल से खुल जाएंगे। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में भी लॉकडाउन में नरमी। 1 जून से दुकानें खुल जाएंगी। चहलकदमी और वर्जिश की भी इजाजत होगी। कमर्शियल बैंक्स और स्टेट बैंक के औकात सुबह 10 बजे से सहपहर 4:30 तक होंगे। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक जुमे को बैंक्स के औकात सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 76 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। आप उन तमाम कल्प्रिट्स को जिनकी निशानदेही हो गई है और वाज़ेह हो गया है कि वो कौन कौन लोग हैं, उनसे वो तमाम रकम रिकवर करके उनके बैंक अकाउंट से FBI रिकवर करे। शुगर मिलों को मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग तक महदूद कर दिया जाए। क्रशिंग सीजन के आगाज़ का ऐलान हुकूमत करे। काश्तकारों को फौरी अदायगी के लिए मिले बैंक से कर्जा ले, जिसका सूद हुकूमत सब्सिडी फंड से अदा करे। करप्ट लोगों का दफा करने की बजाय इनको करार वाकई सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि करप्शन के जरिए अवाम की दौलत पे डाका मारे। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज को भेजें। जियो न्यूज आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाएगा। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317-248-4675 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान। PCB की हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तैनातियां। सकलैन मुश्ताक हेड ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर डेवलपमेंट और ग्रांट ब्रेड बर्न हेड ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोचिंग मुकर्रर। सकलैन मुश्ताक का तकर्री पर खुशी का इज़हार। कहा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एक एहसास है। ग्रांट ब्रेड बर्न सितंबर 2018 से पाकिस्तानी टीम के फील्डिंग कोच हैं। उनकी जगह अब नए फील्डिंग कोच की तैनाती होगी। इस साल अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप होगा या नहीं, फैसला आज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड के अहम इजलास में मुतवक्के। इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुनक्किद होगा। ICC के अगले चेयरमैन के इंतखाब के लिए तरीक़ाकार पर भी बातचीत होगी। बरतानिया में पहली बार बाहिजाब मुस्लिम खातून जज तैनात। 40 साल की राफिया अरशद मिडलैंड्स में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जज मुकर्रर। कहती हैं इस शोबे में अब मजीद बाहिजाब खवातीन को आगे आने का मौका मिलेगा।